الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ حاضرین محفل، ایک مرتبہ ہمارے آقا نامدار احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں خلوص و محبت کے ساتھ بآواز بلند درود پاک کا ہدیہ نچھاور کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم۔ ڈیئر آڈینس، یہ حضور کا شجرہ نسب نامہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر کے آج تک اس کا یہ 10واں پارٹ ہے، پارٹ نمبر 10۔ شجرہ نسب کی یہ 10ویں کڑی ہے۔ اس کا مفہوم، اس کا عنوان یہ ہے کہ حضرت اسحاق علیہ السلام کس طرح سے نابینا ہوئے۔ اس سے گزشتہ ویڈیو مائکروفون خراب ہونے کی وجہ سے کچھ میٹر کٹ گیا تھا، تو ہم اس کے لیے پھر وہیں سے شروع کر رہے ہیں۔ 2 منٹ کی ویڈیو کٹ گئی تھی، وہیں سے شروع کرتے ہیں کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام بادشاہ نمرود کو ختم کرنے کے بعد بادشاہ نمرود کے لیے نار جہنم واصل نار جہنم کرنے کے بعد ملک فلسطین کے لیے واپس ہو جاتے ہیں اور وہاں حضرت سارہ حضرت ہاجرہ کے پاس رہنے لگتے ہیں۔ آپ کا یہ معمول تھا، آپ کا یہ بتیرہ تھا، آپ کی یہ ہیبٹ تھی کہ آپ بغیر مہمان کے کھانا نہیں تناول کرتے تھے۔ ایک دن ایسا اتفاق ہوا کہ کوئی مہمان آپ کے دروازے پر نہیں آیا، دوسرے دن بھی کوئی مہمان نہیں آیا، حتیٰ کہ 7 دن گزر گئے۔ آپ روزے پہ روزہ رکھ رہے ہیں، 7 دن تک آپ کے دروازے پر کوئی مہمان نہیں آیا، آپ روزہ رکھ رہے ہیں۔ 7ویں دن اچانک سڈینلی آپ کے دروازے پر انجان شخص بطور گیسٹ کے حاضر ہوتے ہیں، مہمان بن کر کے آپ کے دروازے پر 4 لوگ آتے ہیں۔ آپ حضرت سارہ سے جا کر کے کہتے ہیں کہ گھر میں کچھ ہے، مہمان آئے ہوئے ہیں۔ حضرت سارہ فرماتے ہیں گھر میں کھانے کے لیے کوئی چیز نہیں ہے، ہاں میرے لیے خداوند قدوس نے آج تک کوئی اولاد نہیں عطا کی، حضرت ہاجرہ کے لیے حضرت اسماعیل علیہ السلام دے دیے، میری عمر 90 سال ہو رہی ہے، آج تک کوئی اولاد نہیں ہوئی، میں نے اس اولاد کی وجہ سے ایک گائے کا بچڑا پالا ہے بطور اولاد کی طرح، وہ بچڑا ہے، اس بچڑے کو ذبح کر کے مہمانوں کے لیے کھلائیے، ضیافت کا انتظام کیجیے۔ غرض حضرت ابراہیم علیہ السلام بچڑے کے لیے ذبح کرتے ہیں، اس کا گوشت بنا کر کے مہمانوں کے لیے ضیافت کا انتظام کرتے ہیں۔ جب دسترخوان لگا، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کے لیے جو دمبا جنت سے آیا تھا، اس کی کھال سے آپ نے دسترخوان بنا دیا اور اسی کو بچھا کر کے مہمانوں کے لیے کھانا کھلاتے تھے۔ اس دمبے کے اندر ایک باریک سی جھلی نکلی، اس جھلی کے لیے حضرت سارہ نے چادر بنا لیا تھا، اس چادر کے لیے حضرت سارہ یوز کرتی تھی، چادر بنا کر کے۔ بچڑے کا بچہ ذبح کرنے کے بعد مہمانوں کے سامنے جب کھانا پیش کیا جاتا ہے،
हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम रोजा थे, आप खाना शुरू कर देते हैं, लेकिन मेहमान जो हैं नीचे के लिए सर डाले हुए खाना नहीं खा रहे हैं, नीचे सर किए हुए बैठे हैं। हजरत सारा जो पर्दे के पीछे से देख रही थी कि मेहमान खाना तनावुल नहीं फरमा रहे हैं, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से कहती हैं कि आप खाना खा रहे हैं और मेहमान बैठे हुए हैं, इनकी तरफ तो देखिए। गरज हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने मेहमानों की तरफ देखा, उनसे कहा बिस्मिल्लाह करके खाना शुरू करें। मेहमानों ने उससे कहा वी आर मैसेंजर ऑफ लॉर्ड, हम अल्लाह के फरिश्ते हैं। आई डोंट ईट, आई डोंट थर्स्टी, हमें प्यास नहीं लगती, हम खाना नहीं खाते, हमें भूख मैसर नहीं, हम फरिश्ते अल्लाह की तरफ से भेजे हुए हैं। अल्लाह ने ये पैगाम दिया है हमारे लिए कि हजरत हाजरा ने बहुत बड़ी कुर्बानी दी, हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को ज़िबा करने के लिए अल्लाह की राह में पेश कर दिया। हजरत सारा ने जो कि एक औलाद ना होने की वजह से बछड़े के लिए औलाद की तरह पाला था, इन्होंने भी एक बहुत बड़ी कुर्बानी दी है। तो हम आपके लिए ये पैगाम देने आए हैं कि इस एवज में आपके यहाँ पर एक साहबजादे पैदा होंगे जिनका नाम इसाक अलैहिस्सलाम होगा, पैगम्बरी के मर्तबे के पहुंचेंगे। हजरत सारा अंदर से फरमाती है कि हमारी 90 साल की उम्र है, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की 99 साल की उम्र है, इस उम्र में कैसे बच्चा पैदा होगा? दैट इज इम्पॉसिबल। ये बात कयाफे से बाहर है, ये बात अक्ल से बैद है। फरिश्ते कहते हैं खुदावंद कुद्दूस के आगे कोई बैद नहीं है, कोई इम्पॉसिबल नहीं है। उसकी जात इस कदर स्ट्रांग, इस कदर हैवी है कि वो जर्रा के लिए पहाड़ कर दे और पहाड़ के लिए जर्रा कर दे। गरज फरिश्ते कहते हैं कि आपके यहाँ एक साहबजादे पैदा होंगे और चले जाते हैं। कुछ वक्फे के बाद हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के एक साहबजादे पैदा हुए जिनका नाम हजरत ने इसाक अलैहिस्सलाम रखा। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के विसाल करने के बाद आप फलस्तीन चले जाए, वहीं पर मदफून है बैतुल मुक़द्दस के पास। आपके हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की उम्र 175 साल हुई थी। आपके विसाल के बाद हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम पैगम्बरी के मर्तबे के लिए पहुंचते हैं। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम खुदावंद कुद्दूस की वहदानियत का दर्स देते हैं और लोगों से कहते हैं, ऐ लोगों, मैं खुदावंद कुद्दूस का पैगंबर हूँ, अल्लाह ताला वहदहू ला शरीक है, उस पर ईमान लाओ। चंद लोग आप पर ईमान लाए। हजरत इब्राहिम के इंतकाल के बाद जब हजरत इसाक अलैहिस्सलाम बालिग हुए, होश में आए, तो हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने अपने छोटे भाई, अपने सौतेले भाई से कहा, इसाक अलैहिस्सलाम से, ऐ भाई, हम मक्के में रह रहे हैं, हमारे पास कोई प्रॉपर्टी नहीं है, आपके पास मुल्क शाम में बादशाहत है, आप मिस्र के और शाम के जो हैं बादशाह हैं, आप पे वालिद साहब की पूरी प्रॉपर्टी है, वालिद की प्रॉपर्टी, वालिद की मिल्कियत में से कुछ हमारे लिए भी हिस्सा दे। गरज हजरत इसाक अलैहिस्सलाम हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम से कहते हैं, इट मे बी पॉसिबल, ऐसा नहीं हो सकता, बिकॉज आई एम सन ऑफ डॉटर ऑफ किंग, मैं एक बादशाहजादी का बेटा हूं। यू आर सन ऑफ ए नेब, आप एक बांदी के गुलाम, आप एक बांदी के बेटे हैं। मेरी वालदा में और आपकी वालदा में जमीन आसमान का फर्क है, आपकी वालदा बांदी हैं और मेरी वालदा शहजादी है। तो लिहाजा जो भी वालिद की प्रॉपर्टी में हक है वो हमें पहुंचता है, आपके लिए नहीं पहुंचता है, आप नहीं ले सकते। इस बात को सुनकर के हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम मलूल हो जाते हैं, आज़ुर्दा हो जाते हैं। आलिम कुद्दूस से हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम आते हैं और फरमाते हैं, खुदावंद कुद्दूस बाद सलाम के फरमाता है कि ऐ इसाक, हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम से कंपेयर मत करो, इनसे मिलान करो मत करो, इनसे ये मत कहो कि तुम बांदी के बेटे हो और मैं शहजादी का बेटा हूं। मैं एक सन ऑफ डॉटर ऑफ किंग हूं, मैं बादशाह की बेटी का बेटा हूं, लिहाजा मेरा हक ज्यादा है, इनसे मत कहो। अरे इनकी नस्ल में तो
हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की नस्ल में ऐसे ऐसे पैगंबर पैदा होंगे और इन्हीं की नस्ल में नबी आखिर ज़मान मबूस होंगे, जो कि तमाम नबियों के सरदार हैं, इमामुल अंबिया हैं। और उस नबी की उम्मत में ऐसे ऐसे बुजुर्ग, ऐसे ऐसे वली औलिया पैदा होंगे जिनकी बुलंदी, जिनका उरूज पहाड़ों की बुलंदियों से भी ज्यादा होगा। तो इनसे कंपेरिज्म कर रहे हो, हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम से मिलान कर रहे हो। हजरत हाजरा की नस्ल से ऐसे ऐसे पैगंबर पैदा होंगे जिनकी कोई मिसाल नहीं। हाँ, तुम्हारी नस्ल में भी पैगंबर पैदा होंगे, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम, लेकिन वो पैगंबर भी डिमांड करेंगे, मुतालबा करेंगे, अल्लाह ताला हमारे लिए उस नबी आखिर ज़मान की उम्मत में पैदा कर, जो कि तेरा हबीब है। तो तुम इनसे मिलान कर रहे हो। ये बात सुन करके हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम आप दीदा हो जाते हैं और इस कदर रोते हैं, इस कदर रोते हैं कि हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम 100 साल तक रोते रहे, रोते रोते नाबीना हो जाते हैं। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की उम्र 135 साल हुई। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की उम्र 135 साल की हुई। आप अल्लाह ताला की वहदानियत का दर्स देते रहे। आपके विसाल के बाद में हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम पैगंबर हुए। ये हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम वही हैं जो कि मैं एक सवाल कर चुका हूं। ये इसहाक अलैहिस्सलाम वही हैं जो खुद पैगंबर, इनके ससुर हजरत लूत अलैहिस्सलाम पैगंबर, इनके बड़े भाई हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम पैगंबर, इनके वालिद हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम पैगंबर, इनके बेटे हजरत याकूब अलैहिस्सलाम पैगंबर, इनके पोते हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम पैगंबर, और इनकी इसहाक अलैहिस्सलाम की नस्ल में 40,000 पैगंबर गुजरे हैं। दुनिया में मबूस हुए 40,000 पैगंबर। वल्लाह आलम बिस्सबाब। तो हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम नाबीना थे जब आप पर पैगंबरी अता हुई। आपके दो साहबजादे थे, हजरत ऐस और हजरत अकब। अकब कहते हैं बाद के लिए, हजरत ऐस बड़े थे, अकब यानी बाद में। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम का लकब, हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की वजह तस्मिया, याकूब अलैहिस्सलाम का टाइटल है अकब, यानी बाद में पैदा हुए, इसलिए लोग अकब के नाम से जानते हैं। नाम आपका याकूब अलैहिस्सलाम है। तो ये दो भाई थे। हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम ने एक रोज मुतालबा किया, डिमांड की, अपनी चॉइस रखी। आपके लिए गोश्त बहुत ज्यादा पसंद था, तो आपने अपने दोनों साहबजादों को बिठा करके कहा, मुझे जो शख्स, जो भी बेटा मेरे लिए हिरन के कबाब खिलाएगा तो मैं उसके हक में दुआ करूंगा। हजरत ऐस की वालदा हजरत ऐस से बहुत ज्यादा मोहब्बत करती थी बड़े बेटे से, या ऐस जो है हजरत ऐस से, हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम ऐस से मोहब्बत ज्यादा किया करते थे बड़े बेटे से। और हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की वालदा अपने छोटे बेटे याकूब अलैहिस्सलाम से बहुत ज्यादा मोहब्बत करती थी। हजरत ऐस जो है तीर कमान लेकर के जंगल में शिकार की जुस्तजू में चले जाते हैं कि शिकार करके लाएं, वालिद के लिए कबाब खिलाएं। वालदा जो कि हजरत याकूब अलैहिस्सलाम को बहुत ज्यादा प्यार करती थी, फौरन एक बकरी का बच्चा ज़िबा करके उसके कबाब बनाए और हजरत याकूब अलैहिस्सलाम को साथ में लेकर के जाती हैं और कहती हैं, हजरत कबाब हाजिर हैं। कबाब खाने के बाद में हजरत याकूब की वालदा फरमाती हैं कि हजरत, जिस बच्चे ने आपको कबाब खिलाए उसके हक में दुआ कीजिए। सुनाते हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम दुआ देते हैं कि वादहुल्ला शरीक, जिस बेटे ने मुझे कबाब खिलाए हैं उसकी नस्ल में पैगंबर ही पैगंबर पैदा फरमा। आफ्टर सम टाइम, कुछ देर के बाद हजरत ऐस शिकार करके आते हैं और कबाब बना करके वालिद साहब की खिदमत में पहुंचते हैं और कहते हैं, बाबा जान लीजिए कबाब हाजिर है। हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम कहते हैं, जो कि नाबीना थे, ही वाज ब्लाइंडेड, फरमाते हैं कि अब ये आपने कबाब नहीं खिलाए? हजरत ऐस कहते हैं, नहीं मैंने नहीं खिलाए। तो हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम कहते हैं, तुम्हारी वालदा ने तुम्हारे साथ छल किया है, धोखा दिया है। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के हक में दुआ करा ली, अब मेरे पास कुछ नहीं है, जो था वो सब निकल गया मुझसे। चलो एक पैगंबर तुम्हारी नस्ल में भी पैदा होंगे। तो हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम को छोड़ करके बाकी तमाम पैगंबर बनी इसराइल में मबूस हुए हैं।
बनी इसराइल में करीब 40,000 पैगंबर दुनिया में आए कमोबेश। हजरत ऐस ने जब ये बात सुनी कि वालदा ने धोखे से हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के हक में दुआ करा ली है, तो बहुत ज्यादा एंग्री होते हैं, रोने करते हैं, आग बबूला हो जाते हैं और कहते हैं मैं याकूब अलैहिस्सलाम के लिए वो मार डालूंगा, खत्म कर दूंगा, और वालदा ने मेरे साथ धोखा किया है, धोखे से कबाब खिलवाए, गरज मारने के लिए तैयार हो जाते हैं। वालदा कहती है कि ऐसा है अपने बेटे याकूब अलैहिस्सलाम से, तुम शहर किनान चले जाओ, वहां तुम्हारा मामा रईस है शहर किनान का, और उसके पास मामा के पास चले जाओ, तो यहाँ इनके गैज़ गज़ब से बच जाओगे हजरत ऐस के। चुनाचे हजरत याकूब अलैहिस्सलाम रात में छुप करके शहर किनान चले जाते हैं अपने मामा के यहाँ। वालदा एक खत दे देती हैं अपने भाई के लिए कि अपनी बेटी की शादी इनसे कर देना। याकूब अलैहिस्सलाम रात में छुप करके चले जाते हैं अपने मामा के यहाँ। रात में छुप कर जाने के लिए इसराइल कहा जाता है, इसलिए इसहाक अलैहिस्सलाम की औलाद यानी याकूब अलैहिस्सलाम का लक़ब जो है इसराइल कहा जाता है। यहां से बनी इसराइल शुरू होती है। याकूब अलैहिस्सलाम अपने मामा के यहाँ पहुंच जाते हैं शहर किनान में, मामा के लिए सारी कैफियत बताते हैं और कहते हैं आपके यहाँ जो साहबजादी हैं, वालदा ने कहा कि उनकी शादी मेरे साथ कर दें। तो मामा कहते हैं उनके महर एवज देने के लिए तुम्हारे पास कुछ है? हजरत याकूब अलैहिस्सलाम फरमाते हैं मैं आपकी बकरियां चरा दूंगा। तो हजरत याकूब अलैहिस्सलाम मामा की बकरियां चराते हैं 7 साल। उनके मामा की 2 साहबजादियां थी, एक का नाम लिया था और एक का नाम राहिल। 7 साल के बाद हजरत याकूब अलैहिस्सलाम मामा से डिमांड करते हैं कि मामा हमने आपकी शर्त पूरी कर दी, बकरियां चरा दी 7 साल, अब हमारी शादी कीजिए। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम बड़ी बेटी जो कि लिया थी उनके साथ में निकाह फरमाते हैं। लिया थोड़ी बदसूरत थी, छोटी साहबजादी राहिल खूबसूरत थी। याकूब अलैहिस्सलाम फरमाते हैं मामा आप एग्रीमेंट का, आप शराइत का मिसयूज कर रहे हैं, उल्लंघन कर रहे हैं। अरे शर्त ये हुई थी लिया के राहिल के साथ शादी होनी है, राहिल से शादी के लिए हम तो एग्री थे, लेकिन आप लिया के साथ बड़ी बेटी से शादी कर रहे हैं। तो मामा ने समझाया बेटे लिया थोड़ी बदसूरत है, राहिल खूबसूरत है, इनकी शादी तो कहीं भी हो सकती है, छोटी है। लिया बड़ी है, लोग ये कहेंगे बड़ी बहन की शादी, बड़ी बहन बैठी हुई है, छोटी की शादी हो गई। तो हजरत याकूब अलैहिस्सलाम कहते हैं नहीं मैं तो राहिल से शादी करूंगा। तो उनके मामा कहते हैं राहिल से अगर शादी करना है तो फिर 10 साल बकरियां और चराओ महर के एवज में। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने मामा की बकरियां 10 साल और चराई। उसके बाद हजरत राहिल की शादी होती है याकूब अलैहिस्सलाम से। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के पीरियड में उनके दौरान पैगंबरी में दोनों बहनें हकीकी बहनें निकाह में जायज थी एक शख्स के लिए उनकी शरीयत के हिसाब से। तो लिया से और राहिल से हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की शादी दोनों बेटियों से, दोनों साहबजादियों से हो जाती है, उनके मामा की लड़कियों से। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम माँ के यहाँ रह रहे हैं, मामा के यहाँ रह रहे हैं। काफी टाइम रहने के बाद में जब उनके मामा एक्सपायर हो गए, विसाल कर लिया, तो उनकी प्रॉपर्टी, उनकी भेड़ बकरियां जो थी सब लेकर के याकूब अलैहिस्सलाम वापस अपने शहर के लिए आते हैं हजरत ऐस अलैहिस्सलाम के पास। हजरत ऐस जो थे शिकार के बहुत ज्यादा शौकीन थे। तो जंगल में शिकार करने जा रहे थे हजरत ऐस। याकूब अलैहिस्सलाम अपने भेड़ों का रेवड़ लेकर के जा रहे थे, तो उन्होंने कहा मेरे भाई हैं, दूर से पहचाना मेरे भाई हजरत ऐस हैं।
तो उनके खौफ की वजह से भेड़ों में छुप गए और अपने नौकरों से ये कह दिया कि ये सामने जो साहब हैं अगर पूछे किसका ये काफिला है, किसका ये रेवड़ है, कौन इनका मालिक है, तो ये कह देना कि हजरत ऐस का गुलाम है, ये उसका ये मटेरियल है, उसकी तमाम ये मिल्कियत है। चुनाचे जब हजरत ऐस के पास जब वो रेवड़ों का भेड़ों का काफिला पहुंचता है तो हजरत ऐस पूछते हैं किसका काफिला है, किसका रेवड़ है, किसकी ये मिल्कियत है। तो नौकर कहते हैं कि ये हजरत ऐस हैं, उनका एक गुलाम है, उनकी ये प्रॉपर्टी, उनकी मिल्कियत है। तो हजरत ऐस ये सुन करके आप विदा हो जाते हैं, रोने लगते हैं, कहते हैं मेरा तो कोई गुलाम नहीं, हाँ मेरा छोटा भाई जरूर था याकूब, वो मेरे खौफ से भाग कर चला गया, मेरे मामा के लिए बोले उन्हीं का है। तो याकूब अलैहिस्सलाम जब देखते हैं कि ये भाई आप दीदा हैं, फौरन निकल करके आते हैं और बगलगिर हो जाते हैं। दोनों भाई इस कदर रोते हैं। हजरत ऐस बड़ी खुशी के साथ विद ग्रेट प्लेजर हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के लिए शहर अपने मकान पर लेकर के आते हैं। कुछ दिन रहने के बाद हजरत ऐस जो है वो कहते हैं भाई आपने बड़ी परेशानी उठाई है। हजरत इसाक अलैहिस्सलाम की दुआ के बाद में पैगंबर तो नहीं, हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम को छोड़ करके बाकी हजरत इसाक अलैहिस्सलाम ने ये दुआ दी थी तुम्हारी नस्ल में बहुत बड़ी पब्लिक, बहुत बड़ी जनरेशन पैदा होगी, बहुत ज्यादा आपकी जो है आपसे दुनिया बढ़ेगी। तो हजरत ऐस का एक बेटा था जिसका नाम रोम था, उसने मुल्क रोम बसाया था। तो हजरत कहते हैं कि आपने गुर्बत में रहे हो, बड़ी परेशानी उठाई है, अब किनान के अंदर आप रहिएगा, मैं रोम के लिए चला जाता हूँ अपने बेटे के पास में। वहां जाकर के हजरत इसाक अलैहिस्सलाम पर पैगंबरी अता हुई और वहीं फिर विसाल फरमा जाते हैं हजरत ऐस। इधर हजरत याकूब अलैहिस्सलाम, दो बीबियां होने के बाद में कोई औलाद नहीं थी, तो बड़ी बीबी जो थी लिया, उनकी एक कनीज थी, उन्होंने याकूब अलैहिस्सलाम के निकाह में दे दी, उनसे भी कोई औलाद नहीं, लिया से भी कोई औलाद नहीं। छोटी बीबी राहिल थी, उनसे भी कोई औलाद नहीं, राहिल ने भी अपनी एक कनीज हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के निकाह में दे दी, उनकी भी कोई औलाद नहीं। चार बीबियों से कोई औलाद नहीं। खुदावंद कुद्दूस की कुदरत का करिश्मा, औलाद होती है तो लिया के 6 साहबजादे पैदा होते हैं, यहूदा, रोहिल, शमून, जबलू, अशखार, लबी, 6 बेटे पैदा हुए पहली बीबी से, बड़ी बीबी से, लिया से। लिया की कनीज से उससे 2 बेटे पैदा होते हैं, कादा और बशीरा। राहिल की जो कनीज थी उससे उसके 2 बेटे पैदा होते हैं, वान और तख्तान। सबके बाद में सबसे लास्ट में जो है हजरत राहिल के 2 साहबजादे पैदा होते हैं, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम और बिन्यामीन। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की 4 बीवियों से 12 बेटे पैदा हुए। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम बड़ी आन बान शान से किनान के अंदर पैगंबरी अता होती है, तो लोगों के लिए खुदावंद कुद्दूस का दर्स देते हैं, लोगों को समझा रहे हैं, मुसलमान बना रहे हैं। कुछ लोग आप पर एतबार कर रहे हैं, कुछ ईमान लाए, कुछ आपके लिए झुटलाते थे। इस तरीके से हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के समझाने के बाद में जब लोग नहीं समझ रहे हैं, अब याकूब अलैहिस्सलाम के इस किस्से के लिए अल्लाह ने चाहा अगले वीडियो में इंशाल्लाह हम पेश करेंगे। ये 10वां पार्ट है, इंशाल्लाह 11वें पार्ट में इंशाल्लाह हजरत याकूब अलैहिस्सलाम और यूसुफ अलैहिस्सलाम का किस्सा बयान किया जाएगा। मैं आपसे बार बार कह चुका हूं कि हमारा ये शजरा नसब नामे की जो है कड़ी 10वीं, ये बतौर एक तारीख इस्लाम का जुज, तारीख इस्लाम का एक निचोड़ जैसा है। मैं फिर बार बार आपसे इल्तिजा करता हूं कि इस वीडियो के लिए शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लोगों के लिए ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर करें, जिससे ज्यादा से ज्यादा
लोगों के लिए जानकारी हासिल हो। आपने जो इतना टाइम वेस्ट किया, आपने ये इतना टाइम खर्च कर रहे हैं, अपना कीमती वक्त जाया कर रहे हैं, अपना वैल्यूएबल टाइम वेस्ट कर रहे हैं, इसके लिए मैं आपका शुक्रगुजार हूँ, मुआज़रत खां हूँ। इन्हीं अल्फाज के साथ अगले वीडियो में अल्लाह के हुक्म से फिर मुलाकात होगी। बाय, सी यू, खुदा हाफिज, वाखिर दावान अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।